Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am back with my same chapter that was going on, that is chapter number 9, reproduction in animals. So we have just finished the topic, that is viviparous and oviparous. Now let us move to the young ones to adults. Now over here we are going to talk about the silkworm, means the frog cycle and the butterfly cycle. This is the frog cycle that this is a silkworm cycle, that is egg converts into larva converts into caterpillar converts into pupa converts into adult. And this is how frog uh, this is how the butterfly is formed. So I hope this is clear to you people. Now let us see the frog. Egg converts into tadpole, that is larva, and larva converts into adult. This is the frog cycle. So I hope this is clear. Now over from this two examples, we can get the conclusion about one term, that is metamorphosis. That is the transformation of a larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. मतलब लार्वा है, उससे ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से जब उस वो अडल्ट में ट्रांसफर हो जाता है तो उसे कहते हैं metamorphosis. Means the transformation of the larva into an adult through the drastic changes is known as metamorphosis. Now asexual reproduction, I have already explained what is the asexual reproduction. Over here even you can see the frog cycle. Okay, and I hope you have studied it earlier, that is why I am not giving much focus to this cycle. Now here this is the hydra and this is the asexual reproduction. So it is a asexual reproduction. Okay, and this is a budding. Asexual reproduction has different parts such as budding and even many other parts we do have. Uh, even binary fission is a kind of a part of asexual reproduction only. So there are different parts. Let us see budding. So budding asexual reproduction में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि है हाइड्रा का. सो इसमें हाइड्रा क्या होता है, ये हाइड्रा का थोड़ा सा ऐसे ऐसे यंग वंस निकलना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ से फिर ऐसे फिर यहाँ से फिर से ऐसे ग्रो हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे 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 करके एक हाइड्रा निकल जाता है और उसके बाद एक दूसरा हाइड्रा बच्चा निकल आता है. सेम वे बर्डिंग का तो हमें समझ में आ गया. द इंडिविजुअल द प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम द बर्ड्स is known as budding. Now amoeba, that is binary fission में क्या होता है, such as this is amoeba. Now its nucleus get divided. इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद इसका मींस कार्योकाइनेसिस हुआ है यहाँ. ओके, कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है दिस इज न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस डिवीजन. सो न्यूक्लियस डिवीजन, सो हेयर डिवाइडिंग द न्यूक्लियस और यहाँ डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म. सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ है यहाँ. दिस इज अ साइटोकाइनेसिस. ओके, सो यहाँ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया. इससे क्या बन गया, टू डॉटर अमोइबास बन गई. तो ये क्या हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, जो कि है बाइनरी फिजन. सो बाइनरी फिजन, the reproduction in which animals reproduces by dividing into two individuals. Okay, now here is the story of Dolly. Now what is being told in this, that on 5th July Dolly was born, and it was the first mammal to be cloned. In this what happened is that during this process a cell was collected from the mammary gland of female fin dorsal. So जो just let me change the color. So जो फीमेल फिन डोरसेट थी, उससे क्या किया गया, उसकी मेमोरी
ग्लैंड से एक सेल कलेक्ट किया गया। तो एक सेल कलेक्ट किया गया, जब वो सेल सपोज ये है हमने कलेक्ट किया। अब अगेन लेट मी चेंज द कलर। ना स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव भी एक शिप ली गई जो कि थी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, ये भी एक शिप ली गई। इसमें से क्या किया, इसमें से भी एक एग लिया गया। अब क्या हुआ कि अब हमने एग तो ले लिया है, अब क्या किया गया कि जो न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम द फिन डोर्सेट शिप वाज inserted into the egg of स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। अब स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से जो एग का न्यूक्लियस लिया गया था वो क्या किया, वो हम रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, और जो फिन डोरसेट का न्यूक्लियस था वो किसमें इंसर्ट कर दिया, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के न्यूक्लियस के प्लेस पे। अब इंसर्ट हो गया और फिर वो एग कहाँ इंसर्ट कर दिया, इनटू द यूट्रस ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। सो अब इसमें क्या हुआ, डोली का बर्थ हुआ, डोली का बर्थ हुआ, एंड दिस इज नोन एज क्लोनिंग। बट डोली की 14 फरवरी 2003 में डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, ड्यू टू लंग डिजीज डेथ हो गई। अब हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास जीन्स भी होते हैं। सो अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्लियरली दैट हमने न्यूक्लियस किसका लिया था, फिंडोरसेट का लिया था। हालांकि एग उसका स्कॉटिश ब्लैकफिश सीव का था, बट मेन तो बोस तो न्यूक्लियस है। तो अब देखो डोली और फिंडोरसेट कितने एक जैसे दिख रहे हैं, पर स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव अलग है। सो हम यहाँ से क्लियरली निकाल सकते हैं कंक्लूजन की जीन बहुत जरूरी है, न्यूक्लियस बहुत जरूरी है, एंड दिस इज अ क्लोनिंग विच वाज डन। सो थैंक यू, please do subscribe the channel, like and share the video.